to open us on the ground, Sahil Sheikh and Khizar Rais. Both are in-form batsmen. Remind you, Taluri, builder and developer, won the toss and elected bat first. Is going to be Javed Farooqi, open the bowling attack from Sona Devi Temgar. Fantastic evening here. Welcome all of you, wherever you are, from Legend of Bhiwandi Vilasar, Challenge Sport and Challenge Organizing Committee. Javed Farooqi, right arm round the stumps. Both this time goes his back foot and punch very hard. Hammered this ball to deep extra cover. Sagar Patil is there. Enough time batsman gets one. So Sahil Sheikh off the mark with one. And Rais builder and developer Taluri one for no wicket. Another tough encounter you are watching between both balanced team. This time step out and check his stroke. Guide to point. Khizar off the mark with single. And Rais builder and developer two without loss. Winning a toss, batting first here. Lot of genius personality today on VIP dice and in presentation box. This time try to hook that ball, fine delivery from Javed Farooqi. Javed Farooqi, one of the killer stick captain, and lot of memories on Challenge Cricket Ground. The man created history in MLA Trophy 2016. This time away from the office, down white signal from umpire. 1 to score now, his score was up to 3 without loss. Javed Farooqi, right arm round his stumps. Ball this time, hooks that ball in the air. Oh, what a magnificent one-handed catch taken. This is the unbelievable. Prathamesh Thakre is there. And unfortunate for Sahil Sheikh. Oh, extraordinary jumping one-handed catch. Catches winning matches. Look at that. Beautifully taken by Prathamesh Thakre. And Sahil Sheikh on his way, disappointment, he is out for one, played 3 balls. Wonderful telecast from technical team Prince Movies, Ravi Gulvi and Prathamesh Patil, online man. Respected mayor watching from VIP dice with lot of doctors and lot of chief guests today. First over in progress, 3 for the loss of 1 wicket. Javed claimed the breakthrough, the captain of Sona Devi Temgar. Javed, right arm round his stumps. Goes to Khizar, attacking on the onside. Ball on the ground to deep mid wicket. And with the stroke, batsman through for 1. His score is 4 for the loss of 1 wicket. Very slow and steady start from Rais builder and developer. The last match of evening in 40 plus. Between Mayuresh Enterprises Bhadwar and Krishna Enterprises Karivali. This time try to slogging this ball. Chinese cut and Harish Kenny of the mark with single. That marks excellent overturn from Javed Farooqi. थँक्यू प्रियांशी स्टुडिओ. मित्रांनो, कोरोनाच्या प्रादुर्भावामध्ये
भरपूर डॉक्टर्सनी कोरोना वॉरियर्स म्हणून काम केलं आणि आत्ताच आपल्यासोबत उपस्थित काही डॉक्टर्स आहेत ज्यांचा आपण एक वेगळा स्पेशल सत्कार करणार आहोत. त्यात IMAच्या प्रेसिडेंट डॉक्टर उज्ज्वला बर्दापूरकर यांचा महापौरांच्या हस्ते आता आपण सत्कार करणार आहोत. उज्ज्वलाजी, आपल्याला चॅलेंज परिवाराकडून आणि महापौरकडून खूप खूप शुभेच्छा. आपण जी भरीव कामगिरी करत आहात त्यासाठी आम्ही अभिमानी आहोत आणि आपण असंच चांगलं कार्य करीत राहावे आणि एक डॉक्टर म्हणून सर्वांना मार्गदर्शन करीत राहावे आणि सेवा करीत राहावे अशा लक्ष शुभेच्छा. डॉक्टर मनोहर अरवारी साहेब यांचा आपण आता नंतर सत्कार करणार आहोत. खूप खूप धन्यवाद डॉक्टर उज्ज्वला बर्दापूरकर, प्रेसिडेंट ऑफ IMA. डॉक्टर मनोहर अरवारी साहेब, आता आपण पुढील सत्कार त्यांचा करणार आहोत. डॉक्टर मनोहरजी, आपण दिलेल्या सेवेबद्दल आणि उल्लेखनीय कामगिरीबद्दल आम्ही आपले अंतःकरणापासून आभारी आहोत आणि आपल्याला खूप शुभेच्छा आहेत, मनपूर्वक शुभेच्छा आहेत. डॉक्टर कामरान मोमीन साहब हमारे बीच उपस्थित है. कामरान भाई, आपने भी जो कोरोना टाइम में सेवा की है, हमें आप पर फख्र है और अल्लाह ताला आपको बहुत नेकी और बरकत बख्शे. आप आगे बढ़े. महापौर के हाथों आपका सत्कार करते हुए हमें बेइंतहा खुशी हो रही है. डॉक्टर कमल जैन साहब, अगला सत्कार हम डॉक्टर कमल जैन साहब का करने जा रहे हैं. डॉक्टर साहब, आपने भी जो सेवाएं दी हैं उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं. आपका सत्कार ही हमारी जिम्मेदारी है और चैलेंज स्पोर्ट्स की ओर से आपको बहुत बहुत अभिनंदन. दोस्तों, अगला सत्कार डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब का हम करने जा रहे हैं. डॉक्टर यूसुफ मेमन साहब, आपका सत्कार करते हुए हमें मजीद खुशी हो रही है और आप बहुत तरक्की करें और हंसते हंसते सेवा करें, ये हमारी शुभकामनाएं हैं. पुढील सत्कार डॉक्टर भरत पाटील जी यांचा आपण करणार आहोत. भरतजी, आपलं हार्दिक स्वागत आहे. आपला सत्कार करत असताना आम्हाला अभिमान आहे. आपणास पुढील वाटचालीसाठी लक्ष शुभेच्छा. डॉक्टर मेहुल जोशी, पुढील सत्कार महापौरांच्या हस्ते आपण डॉक्टर मेहुल यांचा करणार आहोत. डॉक्टर मेहुल जोशी, सर, विश यू गुड लक फॉर द फ्युचर एंडेवर्स. परत एकदा आम्ही आभारी आहोत. डॉक्टर उज्ज्वला बर्दापूरकर, प्रेसिडेंट IMA, डॉक्टर मनोहर अरवारी, डॉक्टर कामरान मोमीन, डॉक्टर कमल जैन, डॉक्टर यूसुफ मेमन, डॉक्टर भरत पाटिल and Dr. Mehul Joshi, wishing all the doctors good luck for the future. Over to Priyanshi Studio. Thank you. धन्यवाद हरीश. दूसरे ओवर में प्रथमेश ठाकरे को बुलाया गया. बहुत खूबसूरत कैच लिया था कवर्स में और आउट हो गए थे बैट्समैन खिजर रईस. ये देखिए, कमाल का कैच. अल्ताफ शेख ने उस कैच को लिया था. दूसरा झटका लगा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर को. स्कोर है 8 रन. आप देख रहे हैं भारत का A1 शो महापौर चषक 2021 में आप सभी का हार्दिक स्वागत है. आज शाम का आखिरी मुकाबला, दोनों टीमों के कैप्टन को तैयार रहना है. 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट से मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवड़ और उनके सामने कृष्णाई इंटरप्राइजेस कारीवली. प्रथमेश ठाकरे बहुत ही जबरदस्त ऑलराउंडर है. कैच लाजवाब पकड़ा, विकेट लिया और पहले मैच में उन्होंने जो बल्लेबाजी की थी वो कमाल की बल्लेबाजी थी. वन ऑफ द यंग टैलेंटेड एंड राइजिंग ऑलराउंडर प्रथमेश ठाकरे. इस मर्तबा स्विंग कर दिया गेंद को मिड विकेट के ऊपर. 6 रन. अरकम पटेल टिपिकल स्ट्रोक. अरकम पटेल ने कह दिया कि सब बंदी चली लेकिन रन बंदी नहीं चलेंगी. बहुत खूबसूरत स्लॉक किया मिड विकेट पर. 6 रन. उछलता हुआ स्कोर पहुंचा इस वक्त 14 रनों पर. अरकम पटेल सिक्सर से खाता खोलते हुए. नॉन स्ट्राइक पर हरीश केने बहुत ही जबरदस्त कप्तान भी हैं
और काफी जंगजू और लड़ाऊ खिलाड़ी हैं। प्रथमेश ठाकरे राइट आर्म राउंड दी स्टंप्स, इस मरतबा बहुत दूर कर बैठे थे वाइट। कहीं ना कहीं पिछले शॉट का नतीजा था, 1 रन और स्कोर में आता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर तलोली 15 रन 2 विकेट। 15 में 4 अतिरिक्त रन है। अरकम को गति परिवर्तन भांप नहीं पाए थे वहां पे अरकम। बहुत खूबसूरत गेंद, ये देखिए, और काफी मूवमेंट भी था। टिप्पा खाने के बाद गेंद ने काटा बदला था, हवा में हल्की सी स्विंग होकर आई थी बाएं हाथ के बैट्समैन के लिए। प्रथमेश ठाकरे इस मरतबा फिर लंबा हिट लेना चाहते थे, गुड लेन पे पड़ने के बाद उलझ कर रहेगी शरीर में हरकम पटेल के। 2 ओवर की समाप्ति, रन बने 15। बहुत बहुत शुक्रिया प्रियांशी स्टूडियो। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका के स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन जनाब हलीम अंसारी साहब उपस्थित है। मैं नगर सेवक नितिन पाटिल जी से दरख्वास्त करूंगा कि हलीम भाई अंसारी का सत्कार किया जाए। हलीम भाई आपको बहुत बहुत मुबारकबाद और आप भिवंडी निजामपुर शहर की खिदमत करते रहें, ये हमारी ओर से शुभकामनाएं हैं। स्टैंडिंग कमेटी चेयरमैन का पोस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट पोस्ट होती है और आप उस जिम्मेदारी को अच्छे से निभाएं, ये हमारी ओर से मुबारकबाद। दोस्तों अगला जो अब हम सत्कार करने जा रहे हैं शोएब गुड्डू साहब, कांग्रेस पार्टी की ज़बरदस्त खिदमत। और शोएब गुड्डू साहब की ये खासियत है कि हमेशा मुस्कुराते रहते हैं और ये जज्बा आपका कायम रहे और अल्लाह ताला आपको बहुत नेकी दे और बहुत तरक्की दे, ये शुभकामनाएं हैं। दोस्तों हमारे बीच इस वक्त भिवंडी निजामपुर शहर महानगर पालिका में शिवसेना के गटनेता संजय भाई म्हात्रे उपस्थित हैं। संजय भाई आपला सत्कार करत असताना आम्हाला अभिमान आहे। जय महाराष्ट्र आणि आपण खूप प्रगती करावी अशा लक्ष शुभेच्छा। अगला सत्कार वसीम अंसारी साहब नगर सेवक है, उनका हम डॉक्टर शाफ मोमिन साहब नगर सेवक, वो भी डॉक्टर जुबैर हमारे बीच उपस्थित है। डॉक्टर साहब आप भी नगर सेवक के रूप में जो खिदमत कर रहे हैं शहर की, उसके लिए हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। आपका सत्कार करते हुए हमें बहुत खुशी हो रही है। और मुजाहिद भाई अंसारी हमारे एक और नगर सेवक, जिनका सत्कार नितिन पाटिल जी के शुभ हाथों हम करने जा रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हलीम भाई अंसारी, शोएब भाई गुड्डू, संजय भाई म्हात्रे, वसीम भाई अंसारी। दोस्तों अब हमारे बीच जाकिर भाई उपस्थित है, जाकिर भाई का सत्कार हम करने जा रहे हैं। जाकिर भाई आपका बहुत बहुत अभिनंदन और आपका सत्कार करते हुए हमें खुशी हुई। बहुत बहुत शुक्रिया ये तमाम हजरात जो आज हमारे बीच उपस्थित हैं और आप सभी को आने वाले दिनों की लाखों शुभकामनाएं। हमारे बीच दोस्तों कल्याण से खास अजहर काजी साहब उपस्थित हैं, मेरे बड़े भाई हैं और अजहर भाई और क्रिकेट का बहुत गहरा रिश्ता है और आज अजहर भाई हमारे बीच उपस्थित है। आपका हम हार्दिक स्वागत करते हैं, बहुत बहुत शुक्रिया। इट्स ओवर टू प्रियांशी स्टूडियो। धन्यवाद हरीश। हरीश ने पहली गेंद पे सिक्सर लगाया और दूसरी गेंद पे लॉन्ग ऑन पे आउट हुए। कुल स्कोर आगे बढ़ता हुआ 21 रन। ये देखिए किस तरह से वहां पर आउट हो गया हरीश के ने, बड़ा झटका लगता हुआ रईस बिल्डर एंड डेवलपर को। ओवर नंबर 3 चल रहा है, स्कोर है 21 रन और विकेटों को हम देखें तो 3 विकेटें गिरी है। आप मुकाबला देख रहे हैं, सोना देवी टेमगर बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं राजा गुलवी। राजा गुलवी बहुत अच्छे स्ट्राइकर हैं और इस सीजन में मैन ऑफ द सीरीज भी बने हैं, मैन फ्रॉम निम्बोली। लेकिन सामना कर रहे हैं अरकम पटेल। अरकम पटेल ने एक सिक्सर लगाया, 2 डॉट गेंदें खेली है। गेंदबाजी कर रहे हैं सागर पाटिल, मैन फ्रॉम केवनी दिवे। लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट जाते हुए 3 खिलाड़ी सर्कल में, पॉइंट शॉट थर्ड मैन और शॉट फाइन लेग। इस मरतबा बहुत ही खूबसूरत कवर ड्राइव
लेकिन डीप में खिलाड़ी मौजूद, 1 रन हाफ वॉली पे लिया था, आंखों के नीचे शॉट को खेला था। 1 रन से स्कोर आगे सरकता हुआ 22 रनों पे पहुंचा है रईस बिल्डर एंड डेवलपर का। बहुत ही सुहानी शाम और दूधिया रोशनी सारे मैदान को अपनी आगोश में लेती हुई सागर पाटिल, आशा पटेल नॉर्थ स्टैंड की तरफ से मुड़ते हुए अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल का इशारा। आज शब का आखिरी मुकाबला 40+ ओल्डी गोल्डी क्रिकेट से खेलने वाली टीमें मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवड़ और कृष्णा इंटरप्राइजेस कारीवली। 3 मुकाबले टाई हुए हैं, उसमें से 2 40+ और 1 चैलेंज है और चैलेंज बी। सागर की गेंद टॉपेज लगा है और सॉफ्ट डिसमिसल। क्या कमाल की गेंदबाजी कर रहे हैं। वुडलैंड पे पड़ने के बाद सीने के करीब आई थी, तेज और स्ट्रोक बना नहीं पाए। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए बैट्समैन। ये देखिए ऑफ स्टंप से बहुत दूर से खींचा था, उछाल अच्छा था, फटका फसला नहीं, बैट्समैन ठसला। आउट होके जा रहे हैं बैट्समैन राजा गुलवी। कमाल की बॉलिंग हो रही है, जो कौन नेचुरल बनता था, जो स्विंग होती है, ये आप देख सकते हैं। लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासा और विद्यमान नगर सेवक संजय मात्रे जी, कमेंटेटर हरीश पंड्या भी वहाँ मौजूद हैं। अर्थात मित्रांनो, संजयभाई आपल्या सोबत आहेत। शिवसेनेचे महानगरपालिकेचे गटनेते आहेत, परंतु तत्पूर्वी ते एक चांगले क्रिकेटपटू आहेत। 40+ म्हणा, ओपन म्हणा, महेंद्र सामाजिक संस्था म्हणा, आणि त्याच व्यतिरिक्त स्वतः चांगले क्रिकेटपटू आहेत। संजयभाई, महापौर चषक म्हटलं की आपल्यासाठी एक दुसरी दिवाळीच असते, तर इथे उपस्थित राहून इथलं वातावरण बघून कसं वाटतंय? पहिल्यांदा तर मी आपल्या माध्यमातून या आयोजनासाठी खास पाटील साहेबांचं अभिनंदन करेन आणि त्यांना शुभेच्छाही देईन की जे कारण त्यांनी म्हणजे हे काय पहिल्यांदाच महापौर चषक ठेवले असं नाही, त्यांनी या अगोदर पण मोठे मोठे टुर्नामेंट नगराध्यक्षित चषकपासून महापौर चषक ठेवलेले आहेत आणि ते जो आयोजन असते या आयोजनासाठी जे क्रिकेटर आहेत ते क्रिकेटर अक्षरशः मरतात की ह्या चॅलेंज ग्राउंडवर कधी खेळायला मिळतं। म्हणून या सर्व खेळाडूंच्या वतीने मी त्यांचं जाहीर आभार मानतो की त्यांनी एवढी मोठी स्पर्धा ठेवली आणि या सर्व खेळाडूंना खेळण्याची जी संधी दिली त्याबद्दल परत एकदा त्यांचं मी अभिनंदन करतो। शेवटचा सामना मयुरेश एंटरप्राइजेस खेळणारे म्हटल्यावर तुम्ही खेळणारच आणि एकाच षटक तुमच्या नावाने असणारच, तर त्यासाठी काय तयारी केली आहे? आणि त्याच्यासाठी तयारीची काही गरज नाही। आम्ही 40+ क्रिकेट हे आमच्या प्रत्येक गावाच्या वतीने खेळत असतो, त्यामुळे आम्ही सकाळी सकाळी थोडेसे प्रॅक्टिस म्हणून 2-4 ओव्हर खेळतच असतो, त्यामुळे तयारी करायची गरज नाही। तसं आम्ही क्रिकेट खेळतोच आणि ह्या मॅचसाठी काही स्पेशल तयारी वगैरे काहीच नाही, आम्ही रेग्युलर जे खेळतोय तसे खेळणार आहे। तर खूप खूप धन्यवाद संजयभाई म्हात्रे, तुम्हाला आणि मयुरेश एंटरप्राइजेसला पुढील सामन्यासाठी शुभेच्छा आहेत चॅलेंज स्पोर्ट्सकडून। खूप खूप धन्यवाद। थैंक यू हरीश। 23 रन हो चुके हैं, गेंदबाजी कर रहे हैं सागर पाटिल। योगेश के लिए ओ बढ़िया गेंद, एज एंड गॉन। क्या खूबसूरत गेंद थी जिस पर आउट हो गए योगेश। इस वक्त प्रेजेंटेशन बॉक्स में कल्याण के लेजेंडरी क्रिकेटर अजहर काजी भी हैं, पायनियर के एक्स कैप्टन सऊद खतीब भी है और सुपर पावर के एक्स कैप्टन नदीम अंसारी भी है। ये देखिए एज एंड गॉन। ओवर समाप्त होते हुए 3 रईस बिल्डर एंड डेवलपर ने बनाए 23 रन। आधी टीम डगआउट में वापस जा चुकी है, ये आप देख सकते हैं। नदीम अंसारी और अजहर काजी जो लेजेंडरी क्रिकेटर लेदर और टेनिस के, सऊद खतीब एक्स कैप्टन ऑफ पायनियर, दीगर मेहमानों को भी दिखाया जा रहा है। ये रवि सर जुड़ चुके हैं, अनाउंसर दुनिया का बड़ा नाम। और वीआईपी डाइस पे आज सम्मानीय महापौर साहिबा, कई नामची डॉक्टर्स जो योद्धा रहे थे, वॉरियर रहे थे कोरोना पीरियड में, जिन्हें सम्मानित किया गया। और कई
मशहूर हस्तियां मैच का मजा लेती हुई। बैक टू क्रिकेट, 3 ओवर की समाप्ति, रन बने 23, विकेटें गिरी 5। अब गेंदबाजी में प्रथमेश ठाकरे को कंटिन्यू रखा गया है, सामना करेंगे अरकम पटेल। नॉन स्ट्राइक पर इस वक्त वैभव है। इस मरतबा खींच के मारने की कोशिश, टॉपेज लगा था लेकिन नोमेस लैंड में गेंद गई थी। 1 रन आता हुआ स्कोर में, 24 रनों पे पहुंचा है स्कोर। रात के समय कहीं ना कहीं गेंदें थोड़ी बहुत रुक कर आती है, यही कारण है कि शॉर्ट टाइम करने में बहुत सावधानी बरतना पड़ती है बल्लेबाज को। सचिन पवार, राजू दासरी, मिस्टर गायकर, सचिन भुईर, केतन घरत हमारे प्रियांशी स्टूडियो में। इस मरतबा प्लेड ऑन, बोल्ड हो गए बैट्समैन वैभव, 0 का चश्मा पहन के। आइए देखते हैं किस तरह से आउट हुए थे। वहां पर कहीं ना कहीं दूर से खेलने की कोशिश की गई होंगी। ये रिप्ले आता हुआ, चैलेंज रिप्ले। यस, स्टम्प विजन साफ बताता है कि बल्ले और शरीर के बीच में अच्छा खासा, ये देखिए, फासला था। अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की अगर हम बात करें तो ज्यादातर प्लेड ऑन होने में वॉल ऑफ इंडिया, राहुल द्रविड़ और हर्षल गिब्स, साउथ अफ्रीका के जो ओपनर थे, ये बहुत मर्तबा इस तरह आउट हुए हैं क्योंकि बैकफुट ड्राइव ये दोनों खिलाड़ी बहुत अच्छा लगाते थे। स्कोर है 6 विकेट गिरे हैं, 24 रन। नए बैट्समैन अब जाकर मशहूर ऑलराउंडर अक्षय ठेटे लेट ऑर्डर आए, मैन फ्रॉम नानकर। इस सीजन में कमाल के फॉर्म में चल रहे हैं और उनकी भी अब अग्नि परीक्षा है। प्रथमेश, अक्षय के लिए स्वीप करने की कोशिश और चुरा लिया है तुमने जो रन को। रन चुराते हुए बल्लेबाज, 1 रन बढ़ता हुआ 25 पे पहुंचा स्कोर। अजय घरत फिर से प्रियांशी में ज्वाइंट होते हुए बहुत दूर से स्वीप खेलना चाहता। वेलकम अजय। धन्यवाद सिद्दीक जी। प्रथमेश, इस मर्तबा लंबा ऊंचा स्ट्रोक, 6 रन। ठीक प्रियांशी स्टूडियो को सलामी देता हुआ बल्लेबाज अरकम पटेल के बल्ले से। व्हाट अ शॉट। भले ही स्थिति थोड़ी सी गंभीर है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की, लेकिन अरकम पटेल ने मोर्चा संभाला हुआ है। ये दूसरा सिक्सर उनका, ऑफ स्टंप के बाहर से उठा के खेल दिया था। फील्डर को लगा कि मौका बनेगा, लेकिन नहीं। Beautifully played, beautifully played. Swung away on the onside. Plenty of power behind the stroke. Tremendous timing. Overhead of the Abhi Patil at wideish mid-wicket fence. 6 runs. प्रथमेश, इस मरतबा फिर से स्विंग किया। अभी पाटिल ने बढ़िया कैच पकड़ा है। क्या कंट्रोल रखा था बाउंड्री के अंदर खुद को रखने के लिए। बहुत बड़े फील्डर हैं। क्या कहेंगे अजय घरत इस कैच के बारे में। जबरदस्त कैच। देखना है कि यस, अंपायर का जाने का इशारा। यस, बहुत ही अच्छा कैच, बाउंड्री लाइन के बहुत नजदीक थे वो। थोड़ा सा और मुझे लगता है कि पीछे जाते तो वो छक्का हो जाता, लेकिन जबरदस्त संतुलन उन्होंने अपने शरीर का बनाए रखा दौड़ते हुए भी। और क्लीन कैच, क्लीन कैच बहुत मुश्किल रहता है जब आप बाउंड्री पे पहरेदारी कर रहे हो। अरकम पटेल अच्छी बारी खेलने के बाद आउट हुए, 15 रन बनाए, 2 सिक्सर लगाए और रईस बिल्डर एंड डेवलपर का स्कोर ओवर नंबर 4 में 31 रन, लेकिन विकेटों का जो खाता है वो ज्यादा है, 7 विकेट गिरे। अब टेल बैटिंग शुरू हो चुकी है और अक्षय ठेटे का साथ निभाने कपिल केने आए, ये भी ऑलराउंडर है। ऐसा लग रहा है कि रईस बिल्डर एंड डेवलपर के पास टेल बैटिंग ही नहीं है, लेकिन ये भी तो सही है कि हत्ती तो चला गया है। इस मरतबा चॉप करने की कोशिश,
पहले बाउंस पे कमाल की विकेट कीपर की फील्डिंग, लेकिन ओवर थ्रो हुआ, 1 रन बना। राहुल मात्रे विकेट कीपर थे, 1 रन से स्कोर आगे बढ़ता हुआ। 4 ओवर की समाप्ति, 32 रन और 7 विकेट। अगली 2 टीमों को टॉस बॉक्स में रिपोर्ट करना है। ओल्डी गोल्डी क्रिकेट 40+ क्रिकेट, मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवड़ और कृष्णाई इंटरप्राइजेस कारीवली। ये आप देख सकते हैं रवि सर, संजय मात्रे पहली रो में, लेजेंड विलास सर पीछे की रो में, सऊद खतीब लेजेंडरी क्रिकेटर, अजहर काजी एक्स कैप्टन ऑफ सुपर पावर, नदीम रईस और हमारे दीगर मेहमान। आगे की रो में नगर सेवक नितिन पाटिल प्रेजेंटेशन बॉक्स में। सभी का हार्दिक स्वागत, वेलकम ऑल ऑफ यू। डेथ ओवर में बुलाया गया है गेंदबाज कलीम खान को। पहली गेंद, क्या हो रहा है, आंखों आंखों में रन पूरा किया है, पलक झपकते ही रन पूरा हो गया है, लेग बाय। ये देखिए गिरते पड़ते शॉट खेलने की कोशिश की थी, पैर से टकराई और तेज सिंगल। इस तरह से सिंगल चुराने पड़ रहे हैं क्योंकि बड़े शॉट्स नहीं आ रहे हैं ज्यादा। केवल अरकम ने 2 छक्के लगाए, अन्य बल्लेबाजों ने निराश किया इस पारी में पूरी तरह से। यह स्लीपिंग स्वीप खेलना चाह रहे थे, इस मर्तबा उछाल दिया है। क्या गेंद मैदान के बाहर, यस, मस्तक पे दस्तक, 6 रन, बिल्कुल सर के ऊपर से निकल गई, मस्तक पे दस्तक। बहुत ही आकर्षक लॉफ्टेड ऑन ड्राइव, ऊंची बैकलिप का इस्तेमाल, थ्रू द लाइन उठा दिया गेंद को। लॉन्ग ऑन के खिलाड़ी को लगा कि कैच है, कोशिश की थी लेकिन उनके सिर के ऊपर से। बहुत ही बढ़िया सिक्सर। 6 रन से उछलता हुआ स्कोर इस वक्त पहुंचा है 39 रनों पर। अक्षय टेटे और कपिल केने 2 बैट्समैन अभी भी अच्छे पिच पे मौजूद हैं और कपिल केने ने आते ही सिक्सर से खाता खोला है। कलीम खान लेफ्ट आर्म राउंडी स्टंप्स, स्विच की कोशिश, लेकिन गेंद कहीं भी जाए बैट्समैन तो रन भाग रहे हैं। लगभग ऐसा है कि फील्डिंग पे डाका डाला जा रहा है। गेंद कहां थी, बिल्कुल स्टंप्स के पास, ये देखिए, लेकिन क्या कॉलिंग थी और क्या दौड़े थे अक्षय टेटे। विकेट कीपर थोड़े दूर है, उसका फायदा उठाया जा रहा है। स्कोर 40 पर पहुंच चुका है। लड़ने के लिए ये स्कोर जरूर अच्छा माना जा सकता है। अभी भी 3 गेंदें शेष है और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स की जो बॉलिंग है वो बहुत ही धारदार है। 40 रन में है और इंपॉर्टेंट 3 गेंदें बची है। अक्षय टेटे, सम्मानीय महापौर साहिबा, प्रतिभा विलास पाटिल मैडम, कई डॉक्टर्स रेस्पेक्टेड और गेस्ट। कलीम खान हुक करने की कोशिश, क्रीज में काफी पीछे गिर रहे थे, बैट्समैन की हलचल को पढ़कर यह गेंद की गई है। अच्छी गेंद थी और लगातार बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर ऑन साइड में खेलने का प्रयास कर रहे हैं, फाइनल की तरफ खेलने का प्रयास कर रहे हैं बैट्समैन अक्षय। काफी ज्यादा शफल कर चुके थे, उछाल अच्छा था, उसमें बीट हुए। कलीम खान लेफ्ट आर्म राउंड विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं। इस मर्तबा एक्स्ट्रा कवर में उछाला, फील्डर है, एक और विकेट गिरता हुआ। आसान कैच देने के बाद अक्षय टेटे आउट। काफी प्रयास किया उन्होंने अटपटे शॉट्स खेलने का, उसमें सफलता मिली नहीं। आखिरकार ऑफ साइड में ड्राइव लगाया, थोड़ा दूर से खेले थे। कोई गलती नहीं की अंकित ने। नए बैट्समैन बल्लेबाजी को जा रहे हैं। चेतन, कितनी गेंदें बची आसिफ रंगरेज? 1 गेंद। इसके बाद 40+ के टॉस की तरफ हम बढ़ेंगे। रन अभी भी 40।
देखना है कि कपिल केने अगर इस गेंद पे बड़ा शॉट लगाते हैं तो फिर एक ऐसा टोटल रहेगा, क्योंकि रईस बिल्डर के पास भी अच्छी बॉलिंग है। ऊपरी सीधा आउट, कमाल का कैच पकड़ा है विकेट कीपर सागर पाटिल ने, क्योंकि ये गेंद तेज निकल गई थी, पीछे कोई भी नहीं था। ये देखिए जोर से बल्ला घुमाया था और जंप लगा के कैच को पकड़ा। तो कुल मिलाकर 40 रन बने, 41 की चुनौती रखी है सोना देवी टेमगढ़ के पास। आइए हम आपको अगले टॉस की तरफ लिए चलते हैं। खेलने वाली टीमें मयूरेश इंटरप्राइजेस भादवड़ और कृष्णा इंटरप्राइजेस कारीवली। 40+ इज ओवर टू वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। थैंक यू प्रियांशी स्टूडियो। तो आखिरी मैच का टॉस जो है पैरेलली नीचे रहेगा, लेकिन इस वक्त हमारे साथ दोस्तों आईएमए प्रेसिडेंट डॉक्टर उज्ज्वला बरदापुरकर जी उपस्थित हैं और चैलेंज की तरफ से हम उनका स्वागत करते हैं। सत्कार अभी उनका हुआ है, सो वी विल हॅव वर्ड विथ हर। डॉक्टर सर्वप्रथम आपलं हार्दिक स्वागत आणि कोरोना काळामध्ये आपण जी कामगिरी बजावली आहे त्याबद्दल तुमचं जेवढं कौतुक आणि अभिनंदन केलं तेवढं कमीच आहे, परंतु तो काळ खूप डिफरंट होता आणि खूप डिफिकल्ट होता. ॲज अ डॉक्टर, ॲज अ प्रेसिडेंट ऑफ IMA, हाऊ डिड यू फेस दिस चॅलेंज? नमस्कार, मी डॉक्टर उज्ज्वला बरदापुरकर तुम्हा सर्वांचं या कार्यक्रमात स्वागत पण करते आणि मी महापौर चषक कोरोना वॉरियर्ससाठी आम्हाला सगळ्यांना दिल्याबद्दल मी महापौरांचे माझ्या मनापासून आभार मानते की केलेल्या कामाची त्यांनी पावती दिली आहे, ॲप्रिसिएशन केलं आहे सगळ्याच मेडिकल फील्डच्या हेल्थ वर्करचं, प्रायव्हेटच्या पण आणखी गव्हर्मेंटच्या सुद्धा, कारण गव्हर्मेंटच्या लोकांनी सुद्धा अतिशय चांगल्या पद्धतीनं सगळ्या हेल्थ वर्करनी अगदी मेडिकल ऑफिसर्सपासून वॉर्ड बॉईजपर्यंत प्रत्येकानं एक्स्ट्राऑर्डिनरी काम केलं आहे. तेवढंच काम प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर्सनी सुद्धा केलेलं आहे. चॅलेंज म्हणाल तर ते खरंच चॅलेंज होतं, कोणीच त्याला तयार नव्हतं. इट वॉज व्हेरी अनएक्सपेक्टेड. विदिन अ व्हेरी शॉर्ट पिरियड आपण फार मोठ्या संकटाला देशने अख्खं जग सामोरं गेलं. आणि मी भारतातल्या प्रत्येक नागरिकाचं कौतुक करते की आपल्याकडे इतकं लोकांच्या दृष्टीनं आपण मागासलेले, लोकांच्या दृष्टीनं आपण आपला गरीब देश, डेव्हलपिंग देश, हे असं सगळं असताना सुद्धा आपल्या नागरिकांनी देशातल्या ते चॅलेंज स्वीकारलं, त्याच्याशी लढले, थोड्या प्रमाणात जिंकले सुद्धा. लस बनवली, लस एक्सेप्ट केली, दुसऱ्या लोकांनाही ती पाठवून त्यांना वाचायसाठी मदत केली. हे नक्कीच गौरवास्पद आहे. आणि आजही मी तुम्हाला सगळ्यांना इथं भेटायचा एक मौका मी सोडणार नाही. तुम्हाला काही गोष्टी सांगायच्या की दुसरी वेव येऊ घातली आहे, कुठंपर्यंत आहे, केवढी आहे, कोणाला माहीत नाही आहे. पहिल्या वेवमध्ये आपण खूप काही गमावलं, खूप काही शिकलो, पण आपण खरंच शिकलो की नाही हे आता आपल्याला कळेल. जर सगळं जग आपल्याला सांगते की दुसरी वेव येऊ घातली आहे तर येईल तेव्हा बघू हा अप्रोच ठेवू नका, ओव्हर कॉन्फिडन्समध्ये जाऊ नका. मला काय होत नाही ह्या गैरविश्वासात राहू नका. घरात तुम्ही एकटे नसता, तुमच्या घरात तुमची मुलं, बायको, तुमचे म्हातारे आई वडील असतात. तुम्ही तरुण असाल, तुमच्याकडे ती इम्युनिटी असेल, पण तुम्ही घरी घेऊन गेल्यानंतर जे जंतू तुम्ही घरी घेऊन जाता त्यांच्याशी लढायची ताकद तुमच्या घरच्यांची असेल की नाही माहीत नाही. त्यामुळं प्रत्येक जण एका सैनिकासारखा या कोरोनाशी लढा, धैर्यानं लढा, आनंदानं राहा, पॉझिटिव्ह राहा. गव्हर्मेंट, पोलीस, कॉर्पोरेशन, ॲडमिनिस्ट्रेशन, डॉक्टर्स जे काही तुम्हाला सांगतात त्या प्रत्येक गोष्टीवरती लक्ष द्या, ते फॉलो करा, क्वेश्चन न करता फॉलो करा. कारण ह्या सगळ्या ज्या गाईडलाईन्स झाल्यात त्या काहीतरी अभ्यास करून झालेल्या आहेत. हे जे इम्युनायझेशन तयार झालेलं आहे हे लाखो रुपये, करोडो रुपये खर्च करून जीव वाचवायसाठी केलेलं आहे. त्याच्यावरती प्रश्नचिन्ह ठेवू नका. प्रश्नचिन्ह न ठेवता तुम्ही हे इम्युनायझेशन घ्या. मी डॉक्टर उज्ज्वला बरदापुरकर, मी पहिली प्रायव्हेट प्रॅक्टिशनर आहे जिनं भिवंडीमध्ये पहिलं वॅक्सिन घेतलेलं आहे आणि आज मी तुमच्या समोर आहे. दुसरंही वॅक्सिन मी घेतलेलं आहे. मित्रांनो, मैत्रिणींनो, नागरिकांनो, बंधू भगिनींनो, सगळेजण न घाबरता वॅक्सिन घ्या. स्वतःला आणि आपल्या सोसायटीला कोरोनापासून वाचवा. खूप खूप धन्यवाद मॅडम. अगदी संक्षिप्तमध्ये तुम्ही जो मेसेज दिलाय
सर्व बंधू भगिनी यांना नम्र विनंती आहे, मैदानामध्ये जे प्रेक्षक आलेत सोशल डिस्टन्सिंग ठेवा, मास्क घाला आणि काळजी घ्या, कारण स्वतःची काळजी तुम्हाला घ्यायची आहे आणि तुमच्या फॅमिलीची काळजी सुद्धा तुम्हाला घ्यायची आहे. तर डॉक्टर उज्ज्वला बर्दापूरकर जी, यू अँड युअर टीम हॅव डन अ ग्रेट जॉब. वन्स अगेन 1000 times thanks to you all and keep doing good job. धन्यवाद. मला इथे 2 शब्द बोलायला देऊन थोडंफार सांगायचा काही मला चान्स दिल्याबद्दल मी महापौरांचे, पाटील साहेबांचे आणि सगळ्यांच्या टीमचे मी आभार मानते. एक फक्त प्रश्न नेहमीच लांब राहा की गव्हर्नमेंट किंवा कॉर्पोरेशन किंवा रुलिंग लोक मला काय देतात, ह्या प्रश्नाबरोबर मी समाजाला काय देतो हा प्रश्नही विचारत राहा. मी जर कुणाला बरं नाही करत तर मला कोरोना पसरायचा मला हक्क नाही हे स्वतःला समजवा. स्वतःच्या जीवाशी पण खेळायची तुम्हाला परवानगी नाही, कारण तुमचा जीव तुमचा एकट्याचा नसतो, त्याच्याबरोबर तुमचे आई वडील मुलं त्यांचाही त्याच्यावर हक्क असतो. त्यामुळं आपल्या घरावर सोसायटीवर कुठल्याही दुःखाचे प्रसंग येऊन देऊ नका. दिलेल्या गाईडलाईन्स पाळा, हेल्दी राहा आणि आपला समाज पण हेल्दी ठेवा. थँक्यू सो मच. खूप खूप धन्यवाद. बॅक टू प्रियांशी स्टुडिओ फॉर लाइव कॉमेंट्री. थैंक यू सो मच हरीश जी पंड्या. 2 गेंदें हो चुकी है इस पारी में. पहली गेंद पर सिंगल, दूसरी गेंद पर गिरीश के बैट से 2 रन. बहुत अच्छा स्ट्रोक ऑन द राइज ड्राइव किया था उन्होंने डीप एक्स्ट्रा कवर की तरफ. योगेश गेंदबाजी कर रहे हैं, बहुत सफल गेंदबाज साबित हुए हैं पहले 2 मैचेस में अपनी टीम के लिए. इस बार अक्रॉस द लाइन खेल दिया है, डीप मिड विकेट की तरफ फील्डर मौजूद है, वहां पर 1 रन जरूर मिलेगा. टारगेट 41 रनों का है इस मैच में सोना देवी AA टेमगढ़ टीम के सामने. थैंक यू अजय. वेलकम टू डॉक्टर दीपेश नाइक ऑन बिहाफ ऑफ चैलेंज स्पोर्ट्स. थैंक यू. बैक टू प्रियांशी स्टूडियो. भले ही छोटा टारगेट है लेकिन दोनों बड़ी टीमें हैं और 2 बड़ी टीमों के बीच में दर्शक एक्सपेक्ट करते हैं कि कड़ा मुकाबला हो, संघर्षजनक मैच हो. इस बार जावेद के बल्ले के अंदर लगी है गेंद, दीप स्क्वायर लेग की तरफ जा रही है. 1 ही रन लेने का अवसर. बैकवर्ड ऑफ द स्क्वायर थोड़ा सा खेल दिया था वहां पर, स्क्वायर लेग अंपायर के पीछे दाहिनी तरफ उनके. स्कोर धीरे धीरे आगे बढ़ता हुआ 5 रन बिना किसी नुकसान के. गिरीश बहुत प्रतिभाशाली खिलाड़ी है, अच्छे स्ट्राइकर है वो टेनिस क्रिकेट बॉल के, और ये बहुत अच्छा मौका है उनको अपनी प्रतिभा सिद्ध करने का. कड़े कड़े लॉफ्ट कर दिया है, लॉन्ग ऑन पर खिलाड़ी तैनात और बहुत अच्छा कैच. पहले विकेट का पतन होता हुआ ब्रेक थ्रू दिलाते हुए अपनी टीम को एक बार फिर से पहले ओवर में योगेश. और यही कार्य किया है पूरे टूर्नामेंट में उन्होंने. नई गेंद से सफलताएं प्राप्त की है. बहुत जोखिम भरा स्ट्रोक था, लॉन्ग ऑन को क्लियर करना चाहते थे, कपिल वहां पर खड़े थे और कपिल ने कोई गलती नहीं की. ऑन द राइज ही खेला था, गेंद के पिच तक जाने का प्रयास नहीं किया, क्रीज में से ही बल्ला चलाया था उन्होंने और पाए गए डीप में. आज बहुत ही गौरवान्वित ये दिन है हमारे लिए. कई सारे मशहूर डॉक्टर्स यहाँ पर पहुँचे, बहुत अच्छा संदेश उनके द्वारा. कोविड-19 के पीरियड में ज़बरदस्त कार्य इन कोरोना योद्धास द्वारा, और अभी भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे. लेकिन जैसे मैडम ने बताया कि खुद का ख्याल रखिए, खुद का ख्याल रखोगे तो ज़रूर आप अपने परिवार का भी ख्याल रखोगे, दूसरों का भी ख्याल रखोगे. मास्क पहनो, सोशल डिस्टेंस मेंटेन रखो. योगेश एक बार फिर से, इस बार लोअर फुल टॉस उछाल दिया है और बिल्कुल गैप में. बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक जावेद द्वारा, 6 रन. बहुत बढ़िया टाइमिंग के साथ खेला हुआ स्ट्रोक, लेकिन सबसे अच्छी बात प्लेसमेंट. गेंद ज्यादा ऊंची नहीं गई थी, छोटी बाउंड्री को टारगेट किया. स्क्वायर ऑफ द विकेट ऑन साइड में. डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग और डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के जो खिलाड़ी है उन दोनों के बीच में ज्यादा फासला नहीं है, लेकिन फिर भी गैप ढूंढने में कामयाब रहे और 6 रन प्राप्त किए जावेद ने. पहले ओवर का खेल समाप्त. स्कोर हुआ है 11 रन 1 विकेट के नुकसान पर. ये देखिए फ्लॅट 6. खूप खूप धन्यवाद प्रियांशी स्टुडिओ. तर मित्रांनो, आजचा रात्रीचा शेवटची लढत 40+ची कृष्णाई एंटरप्राइजेस आणि मयुरेश एंटरप्राइजेस, 2 एंटरप्राइजेस एकमेकांसमोर आहे. दोघांना हार्दिक शुभेच्छा आहेत. कल्याणचे मित्रांनो, खूप मोठे क्रिकेटपटू अझर काझी साहेब, स्पोर्ट्समॅन सीसीसाठी आणि वेगवेगळ्या संघातून ज्यांनी प्रतिनिधित्व केलं, असे आमचे मोठे भाई अझर भाई यांच्या शुभ हस्ते आपण हे नाणेफेक करणार आहोत. अझर भाई,
एका बाजूला महापौर चषक आहे आणि एका बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट्स. महापौर चषक कॉल होता आणि टॉस जिंकलाय ते कृष्णा एंटरप्राइजेसने. नीलम, काय निर्णय घेतलाय? क्षेत्ररक्षण आणि 4 षटकांचा सामना आहे. एखादा टार्गेट आहे का डोळ्यासमोर? 40+. क्या बात आहे. खूप खूप धन्यवाद. मयुरेश एंटरप्राइजेस म्हटलं की रेग्युलर तुम्ही पण खेळता आणि तुम्ही प्रथम फलंदाजी करणार आहात. तर रात्रीची शेवटची मॅच आहे, परंतु तुम्ही पूर्ण चार्ज आहात. तर एखादं लक्ष आहे का डोळ्यासमोर की 9च्या सरासरीने 10च्या सरासरीने असे काही धावा काढू आपण? 40+ करण्याचा आमचा विचार आहे सर. खूप खूप धन्यवाद मित्रांनो. क्रिकेट आहे 40+ आणि दोघांचं नेम आहे सुद्धा 40+. तर दोन्ही कर्णधारांना हार्दिक शुभेच्छा. परत एकदा जाऊया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये. धन्यवाद. शुक्रिया हरीश जी. नेवर की शुरुआत कपिल ने की है. ट्रम्प कार्ड बॉलर हमेशा माने गए हैं कपिल के विकेट्स निकालते हैं, छोटे बॉलिंग रनअप के साथ गेंदबाजी करते हैं. पहली गेंद पर सिंगल आया है, स्कोर 12 पर पहुंच चुका है. आड़े बैट से खेलना चाहते थे जावेद. काफी आक्रामक तेवर जावेद के नजर आ रहे हैं और ऐसे में बॉलर के लिए एक मौका भी बनता है विकेट चटकाने का. अंकित नए बैट्समैन जो इस समय नॉन स्ट्राइकर से इन पर अच्छे स्ट्रोक प्लेयर है, पारी बिल्ड कर सकते हैं, इनिंग्स बना सकते हैं वो अपने और अपनी टीम के लिए. जावेद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं. तारामंडल में भेज दिया गेंद को डीप मिड विकेट के ऊपर से. 6 रन. ये जो इलाका है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड का, स्क्वायर लेग मिड विकेट, ये जावेद कॉर्नर के नाम से भी फेमस है क्योंकि जावेद यहाँ पर कई बार बड़े बड़े शॉट्स खेल चुके हैं इतिहास में और आज भी उस दिशा थँक्यू में. अजय. तर सर्व डॉक्टर्स जे आज आलेत आपल्यासोबत, त्या सर्व डॉक्टर्स परत एकदा खूप खूप अभिनंदन आणि खूप खूप धन्यवाद. आपण अशाच पद्धतीने आम्हा सर्वांचं मार्गदर्शन करा, आमच्या ट्रीटमेंट करा आणि आम्हाला जगण्याची ताकद द्या, अशा शुभेच्छा आणि विनंती. आणि परत एकदा जाऊया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये. खूप खूप धन्यवाद. 18 रन हो चुके हैं. दूसरा सिक्सर जावेद के बल्ले से निकला है. बहुत बढ़िया बैटिंग करते हुए जावेद अपने बिल्कुल चिर परिचित अंदाज में इस समय विस्फोटक अंदाज में बैटिंग कर रहे हैं और जावेद को रोकना कहीं ना कहीं मुश्किल साबित हो रहा है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के गेंदबाजों के लिए. लक्ष्य 41 का है. यहां से और मात्र 23 रनों की आवश्यकता मैच को जीतने के लिए. जय पाटिल अपने मां के साथ अर्थात महापौर मैडम के साथ ये देखिए मां अपने बेटे के साथ. इस बार बहुत अच्छा ऑन ड्राइव, अच्छी गेंद पर अच्छा स्ट्रोक खेला है. 2 रन लेने का प्रयास और 2 रन पूरे. काफी समय था दोनों बल्लेबाजों के पास, बढ़िया तालमेल. इन 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 20 पर पहुंच चुका है. इस बार बेहतर गेंद, लेकिन उसमें भी 1 रन चुराने में कामयाब बल्लेबाज. बैट्समैन को जरूर थोड़ा सा तंग किया था इस बार. 1 रन से स्कोर आगे जाता हुआ 21 और 20 रनों की आवश्यकता है. तीसरा ओवर अभी तक शुरू नहीं हुआ है, ये दूसरा ही ओवर चल रहा है, यानी कि पलड़ा सोना देवी AA टेमघर टीम का भारी हो चुका है इस मुकाबले में. विकेट्स जल्द से जल्द चटकाने होंगे. मैच में वापसी करने के लिए अच्छी गेंद थी. इस बार इनसाइड एज रन लेना चाहते थे अंकित, लेकिन जावेद ने मना किया. अंतिम गेंद पर कोई रन नहीं. 2 ओवर की समाप्ति. स्कोर 21 रन 1 विकेट के नुकसान पर. कुमारी प्रियांशी पाटिल इस समय मैच का मजा लेती हुई. उनके नाम से प्रियांशी स्टूडियो, जो बहुत ही खूबसूरत हमारा कमेंट्री बॉक्स है.
उनके दोस्त भी वहां पर। त्रिशा, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलास आर पाटिल साहब इस टूर्नामेंट के पुरस्कर्ता है और एक जबरदस्त ऊंचाइयों पर लेकर चले गए हैं भिवंडी टेनिस बॉल क्रिकेट को। और अक्सर ये चर्चा होती रहती है कि भिवंडी का टेनिस बॉल क्रिकेट जो है चैलेंज का खासतौर पर वो दुनिया से 10 साल आगे है, क्योंकि कई आविष्कार चैलेंज स्पोर्ट्स क्लब के टूर्नामेंट्स में हमें देखने को मिलते हैं। तर महापौर आपली रजा घेत आहेत, परंतु महापौरांनी स्पर्धेचं उद्घाटन केलं त्या दिवशी दिलेला संदेश आजही आपण विसरू शकत नाही। आपल्या भिवंडी शहराला पुढे न्यायचं आहे, स्वच्छ भिवंडी, हरित भिवंडी, आणि आपल्या शहराला स्वच्छ ठेवण्याची जबाबदारी स्वतःवर तर त्यांनी घेतलीच आहे। आपण सर्वांनी त्यांच्या बाजूने उभे राहून हे काम यशस्वीरित्या पार पाडायचं आहे। खूप खूप धन्यवाद महापौर सौ प्रतिभा विलास पाटील। परत एकदा जाऊया प्रियांशी स्टुडिओमध्ये। मैच में इस समय स्थिति काफी मजबूत नजर आ रही है सोना देवी AA टेमघर टीम की। 18 गेंदों में मात्र 20 रनों की आवश्यकता है जीतने के लिए और अभी भी 9 विकेटें हाथ में है। गेंदबाजी में परिवर्तन किया जा रहा है। अक्षय थेटे के हाथ में है गेंद, जावेद के पास स्ट्राइक। अक्षय की पहली गेंद, लॉफ्ट करने का प्रयास, अपील हो रही है। प्रश्न पूछा गया अंपायर से लेकिन तुरंत अपील को नकारते हुए अंपायर अमर महतो, लेग बाई का इशारा किया है उन्होंने। जावेद का LBW आउट होना मुश्किल ही है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो ऑफ स्टंप के बाहर जाकर ज़्यादातर स्ट्रोक्स खेलते हैं, रिस्क बहुत उठाते हैं। बोल्ड के रूप में आउट ज़्यादा होते हैं या फिर कैच के रूप में ज़्यादा उनको आउट होते हुए देखा है। LBW बहुत कम बार वो आउट होते हैं क्योंकि स्टंप्स छोड़कर बैटिंग करते हैं। इस बार ऑन साइड में टर्न कर दिया है, एलिवेशन नहीं बना पाए स्ट्रोक में अंकित। 1 रन, इस 1 रन की बदौलत स्कोर 23 पर पहुंच चुका है। 23 रन्स ऑन द बोर्ड। समीकरण आसान है लेकिन यहाँ पर आसान लगने वाली चीजें भी कई बार मुश्किल बन जाती है, तो क्यों चल नहीं रहे? क्योंकि ये चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड है। यहाँ पर हर कोई एक अलग तरीके का चैलेंज लेकर आता है। हर खिलाड़ी अपने विपक्षी टीम को चैलेंज देना चाहता है। एक और अच्छी गेंद, ओ डायरेक्ट हिट की जरूरत थी, निशाना चूकता हुआ अक्षय थेटे का। फिर से लेग बाय, बढ़िया गेंदबाजी कर रहे हैं अक्षय थेटे और इन दिनों बढ़िया फॉर्म में चल रहे अक्षय थेटे। जिस तरह से पहला मुकाबला उन्होंने जिताया अपनी टीम को, जब 9 रन डिफेंड करने थे अंतिम ओवर में, संतुलन अपने शरीर का वो बना नहीं पाए थे, फिसल गए थे, जिस वजह से उनका थ्रो भी दिशाहीन रहा। लगातार सिंगल्स आते हुए इस ओवर में 2 लेग बाइज आए हैं और 1 बल्ले से रन आया है। राइटी लेफ्टी का कॉम्बिनेशन, फील्डिंग में लगातार फील्डर्स को अपनी जगह बदलनी पड़ रही है। थर्ड मैन फाइन लेग ऊपर, 1 बैकवर्ड पॉइंट पर खिलाड़ी है, 6 खिलाड़ी बाउंड्री पर। हवा में है गेंद, फील्डर डीप में मौजूद कपिल केने, बहुत अच्छा कैच। दूसरा कैच लपका है कपिल ने और दूसरा झटका लगता हुआ सोना देवी AA टेमघर टीम को। 24 पर 2। अंकित लगातार कोशिश कर रहे थे मिड विकेट को क्लियर करने की, लेकिन इस बार हवा में खेला उन्होंने जरूर, एलिवेशन नहीं था क्योंकि मिडल नहीं कर पाए थे। बल्ले की जब अंदर लगती है तो वो ऊंचाई मिलती नहीं जो बैट्समैन चाहता है। बल्ले के बीचों बीच लेकर खेलना बहुत जरूरी। अच्छा कैच कपिल द्वारा, फील्डिंग में अच्छा योगदान देते हुए कपिल के ने अपनी टीम के लिए। 24 पर यह दूसरा विकेट गिरा है। अभी भी जीतने के लिए 17 रनों की जरूरत। अक्षय थेटे को मिलने वाली पहली सफलता, और जिस तरह से वो बॉलिंग कर रहे थे लग ही रहा था कि सफलता के काफी नजदीक पहुंच गए हैं। पहले 3 गेंदों पर तंग किया था दोनों बल्लेबाजों को और आखिरकार उनको विकेट मिलता हुआ, तो ये अच्छी बॉलिंग का रिवार्ड उनको मिला है। और इसी तरह से कप्तान चाहेंगे कि अक्षय थेटे गेंदबाजी करते रहे, अन्य गेंदबाजों का भी साथ उनको मिलना चाहिए, तब ये मैच रोमांचक स्थिति में पहुंच सकता है। अभी भी थोड़ी सी दिलचस्पी है। वैसे देखा जाए तो टेमघर टीम का पलड़ा भारी माना जा सकता है, लेकिन जब तक क्रिकेट के खेल में अंतिम गेंद नहीं फेंकी जाती, अंतिम विकेट नहीं गिरता या फिर अंतिम रन नहीं बनता है, तब तक किसी भी टीम को विजेता घोषित नहीं किया जा सकता है। बहुत अच्छी गेंद, एक बार फिर से फुलर लेंथ,
जावेद ऑफ स्टंप के बाहर लगातार खेलते हुए और एक और लेग बाय, 3 गेंदों पर लेग बाइज के जरिए सिंगल्स चुराए हैं बल्लेबाजों ने। गजब की गेंदबाजी करते हुए अक्षय थेटे, लगातार फुलर लेन थोड़े अंदर की तरफ आई, ऑफ स्टंप के बाहर इम्पैक्ट, जो कि ज्यादातर होता है जब जावेद के पैर पर गेंद लगती है। मैंने पहले भी बताया कि उनका एलबीडब्ल्यू आउट होना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि वो तीनों स्टंप्स छोड़कर बैटिंग करते हैं और स्ट्रोक तो ऑफर करते ही है, बड़े शॉट्स के लिए ज्यादा चाहते हैं। अभी तक जावेद ने 17 रन बनाए हैं। अल्ताफ शेख नए बल्लेबाज, ग्लांस करना चाहते थे, लेग स्टंप के बाहर ही ये गेंद अपने आप से खफा। अक्षय थेटे दिशाहीन गेंद कर बैठे, जानते हैं कि एक एक रन काफी अहम है इस समय। महापौर चषक 2021 का ये बहुत बड़ा मुकाबला है और महापौर चषक में अपनी चुनौती बरकरार रखनी है तो मैच जीतना ही होगा। दोनों भी टीमों के लिए ये मैच महत्वपूर्ण। उठाकर खेलने की कोशिश, पूरी तरह से छकाया वहां पर अल्ताफ शेख को। बहुत ही बेहतरीन ओवर समाप्त होता हुआ अक्षय थेटे का। 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है। 41 रनों का पीछा कर रही है सोना देवी टीमगढ़ टीम। स्कोर हुआ है 26 रन 2 विकेटों के नुकसान पर। बचे हुए 2 ओवर्स में 15 रनों की जरूरत। एक से बढ़कर एक रोमांचक मुकाबले हमने देखे पूरे मेयर कप में, और ये मैच भी रोमांचक स्थिति में पहुंचता हुआ। भले ही 8 विकेट हाथ में है, लेकिन हमने कई मुकाबले ऐसे भी देखे चेस करने वाले टीमों के बहुत से विकेट सुरक्षित थे, लेकिन उसके बावजूद भी 7 या 8 रन प्रति ओवर के हिसाब से टीमें रन बना नहीं पाई और उनके चेस असफल रहे, जिसमें पायनियर स्पोर्ट्स का उत्तम उदाहरण दिया जा सकता है। 18 गेंदों पर 19 रन बंटी स्पोर्ट्स के विरुद्ध पायनियर के बल्लेबाज नहीं बना पाए थे, जबकि उनके काफी विकेट साथ में थे। साथ में बी इंडियन टीम के साथ भी वही हुआ। जय दुर्गा बी और बी इंडियन का वो बहुत ही यादगार मैच, जिसमें विकेटें काफी हाथ में थी, लेकिन तेज गति से आखिर के ओवर्स में बल्लेबाज रन नहीं बना पाए और मैच गंवाना पड़ा बी इंडियन टीम को। प्रेजेंटेशन बॉक्स महापौर चषक 2021, संतोष चौहान साहब है वहां पर, नदीम अंसारी साहब भी है, लेजेंड ऑफ भिवंडी विलासर पाटिल साहब के साथ, पीछे बिजू ठाकरे साहब, साथ में सऊद खतीब साहब भी है, अमोल पाटिल भी है वहां पर। 12 गेंदे और 15 रन। छोटी चुनौती पर भी अच्छा संघर्ष। मयूर के हाथ में एक गेंद। हालांकि इस सीजन में कई बार उन्होंने नई गेंद से गेंदबाजी की है, लेकिन आज अंडर फ्लडलाइट्स चौथा ओवर लेकर आ रहे हैं। जावेद के पास स्ट्राइक, रिवर्स स्वीप, ओ कैच की कोशिश नहीं की, बहुत बड़ी गलती कही जा सकती है। क्या कर रहे थे फील्डर चेतन है मेरे ख्याल से वहां पर, जरूर मौका बन रहा था लेकिन आगे आए ही नहीं, साहस नहीं जुटा पाए वो कैच के लिए। और देखिए पैर से आखिरकार उन्होंने गेंद को रोका है, हाथों का इस्तेमाल करते हुए नजर आए ही नहीं थे। पैरों से तो कैच पकड़े नहीं जाते। जावेद जैसे बैट्समैन का कैच आपकी तरफ आ रहा हो तो निश्चित रूप से उसको लपकना चाहिए, नहीं तो फिर काफी घातक हो सकता है आपकी टीम के लिए। 11 गेंदों में अब 14 रन चाहिए। अल्ताफ शेख के पास स्ट्राइक, एक गेंद खेली है, खाता खुला नहीं है उनका। मयूर के नहीं, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट। इस बार उल्टा शॉट गैप में निकाल दिया है, क्या अद्भुत शॉट है ये, 4 रन। ऐसे लगता है कि बायत के बैट्समैन ने फ्लिक मारा हो, वो भी कारपेट के सहारे। क्या खूबसूरत शॉट खेला है और ये मनपसंद स्ट्रोक है अल्ताफ शेख का। पूरी भिवंडी जानती है खतरों के खिलाड़ी है अल्ताफ शेख, खतरा उठाकर ही बैटिंग करते हैं और इसमें वो कई बार सफल हुए कई बार असफल हुए हैं, लेकिन इस बार सफल साबित हुए। हालांकि गेंद पूरी लंबाई की थी, लेकिन क्या खूबसूरती के साथ निकाला उन्होंने। कवर पॉइंट सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। डीप बैकवर्ड पॉइंट पर एक खिलाड़ी था और एक खिलाड़ी सर्कल में कवर्स में था, लेकिन दोनों को बीट करती हुई गेंद निकल गई थी। ये देखिए बहुत ही खूबसूरत शॉट, बहुत पहले ही स्टांस चेंज कर लिया और साथ में उन्होंने ग्रिप भी चेंज कर ली थी। दमदार शॉट।
स्कोर उछलता हुआ 31 पर पहुंच चुका है। अब समीकरण रन बॉल इक्वेशन है, 10 गेंदों में 10 रनों की जरूरत सोना देवी डबल ए टेमघर टीम को यह मुकाबला जीतने के लिए। एक एक रन बचाने की चुनौती गेंदबाजों के सामने। फील्डिंग में परिवर्तन किया गया है, इस बार सीधे बैट से ड्राइव कर दिया है। लॉन्ग ऑन मौजूद, एक ही रन, 9 गेंदे 9 रन। देखिए अल्ताफ शेख जो है वो सीधे बैट से भी बड़े अच्छे शॉट्स खेल लेते हैं, लेकिन वो जो स्विच हिट खेलते हैं उसमें कई बार वो अपना विकेट भी गवा देते हैं। ऐसा नहीं कि वो सामने अच्छे शॉट्स नहीं खेल सकते हैं, क्लासिक शॉट्स वो खेल नहीं सकते, लेकिन कहीं ना कहीं इम्प्रोवाइज क्रिकेट ज्यादा खेलते हैं। एक आदत सी हो गई है उनको। दोनों भी अनुभवी खिलाड़ी क्रीज पर है। मयूर उनकी तुलना में थोड़े कम अनुभवी खिलाड़ी है, लेकिन बहुत अच्छे गेंदबाज है। अगली गेंद इस बार ऑन ड्राइव कर दिया हवा में, वाइड स्टेटमेंट विकेट पर फील्डर मौजूद है। 1 रन लेने का अवसर, 8 गेंदे 8 रन। गेंदबाजों की कोशिश यही है कि आखिरी ओवर तक मैच लेकर जाए। मयूर चाहेंगे कि आखिरी ओवर में, अब 8 गेंदों में 8 है तो कम से कम 6 गेंदों में 6 का समीकरण लेकर चले, और 6 गेंदों में 6 रन भी रहते हैं तो थोड़ा बहुत दबाव बल्लेबाजों पर भी रहेगा। अंतिम ओवर की कहानी बड़ी रोचक होने वाली है ऐसे लगता है, लेकिन ये 2 गेंदे उससे पहले बहुत महत्वपूर्ण। मिड ऑफ ऊपर रखा है, लॉन्ग ऑन पीछे, बाउंड्री पर बिल्कुल एक डीप एक्स्ट्रा कवर, एक डीप पॉइंट, एक शॉर्ट थर्ड मैन। स्विच हिट की कोशिश, ये गेंद खाली चली गई। अल्ताफ शेख का क्रिकेट ऐसा ही है, इसी तरह से वो खेलते हैं, इसी तरह से वो रन भी बनाते हैं, इसी तरह से आउट भी हो जाते हैं कई बार। अनप्रेडिक्टेबल बल्लेबाज है, पूरी तरह से अनप्रेडिक्टेबल। कब कौन सा शॉट खेलेंगे ये कोई नहीं बता सकता है। फील्ड प्लेसमेंट कैसा है वो उसको दिखते नहीं, उनको फर्क नहीं पड़ता है, वो एक अलग ही दुनिया में रहते हैं ऐसे लगता है कई बार। 7 गेंदों में अब 8 रन चाहिए। फुल टॉस है इस बार तारामंडल में, लेकिन मैदान के अंदर और आउट। कपिल के ने कमाल कर रहे हैं, के ने लपका है ये तीसरा कैच। मैच में रोचकता, 6 गेंदे शेष है, 8 रनों की आवश्यकता है। 6 गेंदों में 6 के बारे में हम सोच रहे थे, लेकिन अब 8 रन चाहिए 6 गेंदों में। ये फुल टॉस थी, लेकिन ठीक तरह से टाइम नहीं कर पाए, बहुत ऊपर खेल बैठे, ऊंचाई ज्यादा दूरी कम। लॉन्ग ऑन पर पाए गए अल्ताफ शेख। समीकरण वैसे सिंपल था उनके लिए, 8 में 8 चाहिए थे, 2 गेंदों पर वो 2 सिंगल लेते या दोनों बल्लेबाज, या फिर 3-4 रन भी आ सकते थे यदि अच्छे शॉट्स खेलते तो, लेकिन ये अगर मगर की बातें हैं। मैच काफी रोचक स्थिति में पहुंच चुका है। 4 ओवर की समाप्ति, स्कोर 33 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नए बैट्समैन प्रथमेश ठाकरे अच्छे टच में है इस सीजन में, बॉलिंग बैटिंग दोनों भी बढ़िया कर रहे हैं अपने टीम के लिए। तो विकेट सही समय पर प्राप्त किया मयूर केने ने, अपने ओवर में सिर्फ 7 रन खर्च किए। अंतिम ओवर की जिम्मेदारी अक्षय थेटे के कंधों पर है, और इस सिचुएशन के माहिर गेंदबाज है अक्षय थेटे। पहले राउंड के मैच में 9 रन डिफेंड किए थे उन्होंने आखिरी ओवर में, आज 8 रन है उनके पास बचाने के लिए। जावेद अभी भी डटे हुए हैं, कप्तान है सोना देवी टेमघर टीम के, 19 पर बैटिंग करते हुए 11 गेंदों का सामना किया है। 6 गेंदे 8 रन। अक्षय चले दाहिने हाथ से ओवर द विकेट, गेंद को निकाल दिया है, फाइन लेग के बगल में से खिलाड़ी पीछा कर रहे हैं, गेंद तेज सरक रही है, बढ़िया कोशिश, बहुत ही शानदार फील्डिंग, बढ़िया क्रिकेट। 2 रन जरूर बचाए वहां पर फील्डर ने। वैभव थे खिलाड़ी, जबरदस्त क्रिकेट। महापौर एवन चषक 2021 में ये एवन क्रिकेट देखने को मिल रहा है। अब 5 गेंदे शेष है, 6 रनों की जरूरत। मैच यदि टाई होता है तो 2 गेंदों का बॉल आउट है, और बॉल आउट भी टाई होता है तो जिस टीम ने टॉस जीता है उस टीम को विजेता घोषित किया जाएगा। इस मैच का टॉस जीता था रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। दिलों की धड़कनें तेज कर देने वाला एक और मैच मेयर कप 2021 में, दर्शक टकटकी लगाकर हर एक गेंद को देखते हुए। फुलर लेंथ यॉर्कर है, अपील हो रही है वहां पर। जी नहीं, हरीश के ने शायद अपने फील्डर्स को कुछ इशारा कर रहे हैं। कोई रन नहीं इस गेंद पर, डॉट गेंद।
सिद्दीक भाभी मेरे साथ जुड़ते हुए कमेंट्री बॉक्स में तो नहीं है, थोड़े बाहर है, मैदान में ये नजर आ रहे हैं, वो जा रहे हैं प्रेजेंटेशन बॉक्स की Yes. तरफ। स्वागत है आपका। लेकिन मैच बहुत ही रोमांचक स्थिति में और इस समय डॉट गेंद सोने की बिंदी की तरह है। Yes, Ajay, I think there is a wall between Victory and Rise Builder. Wall is terrific, Javed. शॉर्ट पोल गेंद हवा में है, पूरी तरह से टाइम नहीं कर पाए। डीप मिड विकेट पर बढ़िया फील्डिंग, क्षेत्ररक्षण लाजवाब देखने को मिल रहा है। कश्मकश बढ़ती हुई खेल में 3 गेंदे जीतने के लिए अभी भी चाहिए 5 रन। What a match. Cut to cut match you are watching. क्लोज एनकाउंटर है ये सोना देवी टेमघर और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में। अक्षय तेटे एक बार फिर से गेंद लेकर चले, उनके सामने है प्रथमेश ठाकरे। ऑन द राइज, हवा में खेल दिया है, कैच ड्रॉप। मुश्किल अवसर था, लेकिन ऐसे सिचुएशन में ये कैचेस लिए जा सकते थे। इस तरह के कैचेस लिए जाते हैं कई बार, लेकिन इस बार गलती हुई है। हालांकि बढ़िया प्रयास किया था, अंदर की तरफ आई थी गेंद, आड़े बैट से खेल दिया था। और ये देखिए थोड़ा लो कैच था। योगेश की अच्छी कोशिश, योगेश ने पिछले मैच में 3 कैचेस लपके थे, लेकिन इस बार वो कैच नहीं लपक पाए। अजय, कहना होगा कि कहीं ना कहीं ये जो कैच है मैच का टर्निंग पॉइंट ना बन जाए। 2 गेंदे और 4 रनों की जरूरत है। व्हाट अ मैच। जावेद के पास अभी भी स्ट्राइक। यदि जावेद नॉट आउट रहकर मैच नहीं जीता जाता है तो फिर निश्चित रूप से बहुत बड़ा सवाल उत्पन्न हो सकता है उनके बल्लेबाजी पर। एक और शानदार गेंद, अक्षय थेटे, लाजवाब अक्षय थेटे, 1 ही रन। क्या शाम है और क्या मैच है अजय। 1 गेंद और जीतने के लिए 3 रन, तीनों ऑप्शन खुले। गोल्डन बाउंड्री लगी तो मुकाबला जीत जाएंगी सोना देवी टेमघर। 2 रन बने तो चौथा टाई देखेंगे हम मेयर कप 2020-21 का, और नहीं बने तो फिर रईस बिल्डर एंड डेवलपर। ये देखिए डगआउट में हलचल। कमाल का मैच, 1 गेंद और 3 रन। जी हाँ, तीनों भी ऑप्शंस खुले हैं, कुछ भी हो सकता है। स्ट्राइक है प्रथमेश ठाकरे के पास, गेंद है अक्षय थेटे के हाथ में। दर्शक काफी खुश, काफी प्रसन्न, वातावरण बिल्कुल प्रफुल्लित हो गया है चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पर। आखिरी गेंद, ओ बल्ले पर नहीं ले पाए और 1 ही रन बना पाए बैट्समैन। दूसरे के लिए जाना चाहते हैं। देखना क्या नतीजा आता है, अंपायर का क्या निर्णय आता है। तीसरे अंपायर की मदद ली जा रही है। नाटकीय क्रिकेट हो रहा है अंतिम गेंद पर। देखना है कि ये तीसरे अंपायर को कॉल क्यों किया गया है, ये ऑनफील्ड अंपायर ही बता सकते हैं। देखना है, काफी प्रोफेशनल अंपायर है। हालांकि हम देख रहे हैं कि खुशियां वहां पर नजर आ रही है, फील्डर्स के बीच में जश्न वो मना रहे हैं, लेकिन अभी तीसरे अंपायर का फैसला आया नहीं है। गेंद अंदर की तरफ आई, लगातार तेज इन कटर्स का अच्छा इस्तेमाल किया पूरे ओवर में अक्षय थेटे ने। 1 रन पूरा हो चुका था, फिर स्टंप्स पहले ही बिखेर दिए थे, फिर स्टंप्स उखाड़ने का भी प्रयास हुआ है। बहुत जबरदस्त ड्रामा आखिरी गेंद पर। अजय, देखना है कि ये तीसरे अंपायर को ऑनफील्ड अंपायर ने किस लिए कॉल किया था। क्या मुकाबला, पैसा वसूल मैच, चैलेंज क्रिकेट ग्राउंड पे चैलेंजिंग मुकाबला। भारत के A1 शो महापौर चषक 2021 में। महापौर चषक कट टू कट मैचेस के लिए याद रखा जाएगा, और साथ ही साथ इसलिए भी याद रखा जाएगा कि गेंदबाजों ने एन मुकाबले में बहुत अच्छी गेंदबाजी की है। एक गोल्डन 6 भी लगा है। 3 मुकाबले टाई में। अब ये देखने वाली बात है कि ये दूसरा रन जो लिया गया है वो वैध है या नहीं, वो पूरा हुआ है या नहीं, बैट्समैन पहुंचे हैं या नहीं, बैट्समैन आउट है या नॉट आउट है। कई सारी चीजें थर्ड अंपायर देखते हुए। यस,
बहुत सारी चीजें हैं। क्या उस वक्त स्टम्प जो उखाड़ा गया ब्रेक द बेस के बाद ब्रेक द स्टम्प्स का रूल, बहुत सारी चीजें देखी जा रही है। क्या पहले रन के बाद गेंद डेड हुई थी? बहुत सारे सवालात इस एक गेंद के पीछे छुपे हुए। सभी गेंदें खत्म हो गई है, लेकिन नतीजा अभी तक आया नहीं है। यदि दूसरा रन पूरा होता है तो फिर मैच टाई हो जाएगा, बॉल आउट हमें देखने को मिलेगा। लेकिन यदि एक ही रन है तो फिर रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम जीत जाएगी। बहुत महत्वपूर्ण ये फैसला है, जिस वजह से काफी समय भी लिया जा रहा है तीसरे 24 अंपायर द्वारा। अजय 24 खिलाड़ियों के जो दिल है वो हलक में अटक गए हैं। जी हाँ, अभी भी वो दिलों की धड़कन काफी तेज है, धक 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 धक। ये देखिए, ये तो सेलिब्रेशन भी शुरू हो गया था। लेकिन अक्षय थेटे ने, सिद्दीक जी, कमाल की गेंदबाजी की। 8 ही रन थे उनके पास डिफेंड करने के लिए। अभी नतीजा कुछ भी क्यों ना हो, अक्षय थेटे की तारीफ करनी होगी, जिस तरह से उन्होंने अंडर प्रेशर गेंदबाजी की दो अच्छे बल्लेबाजों के सामने। बिल्कुल, और वो भी वेल सेट बैट्समैन जावेद के सामने। ये देखिए, इस समय तो हमें देखने को मिल रहा है कि हरीश के हाथ में स्टंप और गेंद, फिर उन्होंने तीनों स्टंप भी उठा लिए थे। इस मैच के बाद आज का आखिरी मैच देखने को मिलेगा मयूरेश एंटरप्राइजेस भादवड़ और कृष्णाई एंटरप्राइजेस कारिवली के बीच में 40 प्लस का मुकाबला, और 40 प्लस का सेमीफाइनल मुकाबला रहेगा वो। अभी भी इंतजार है तीसरे अंपायर के निर्णय का। स्टिल डिसीजन पेंडिंग।
ये देखिए शॉट वहाँ पे खेला था, अक्षय ठेठे जश्न मनाते हुए आगे बढ़े, उन्होंने बेल्स ऑफ की, गेंद विकेट कीपर के हाथ में गई।
देखिए, थर्ड अंपायर का फैसला ये है कि एक ही रन है और बैट्समैन नॉट आउट है, यानी कि मैच एक रन से जीत लिया है रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स ने। Yes, congratulations, Rais Builder and Developer, and hard luck, सोना देवी टेमगढ़, hard luck, जावेद फारूकी। अजय ये बताइए कि इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी कौन है? अजय। जी हाँ, मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी है जिन्होंने अंतिम ओवर किया, अंडर प्रेशर लाजवाब बॉलिंग की। मैन फ्रॉम नानकर अक्षय थेटे। बहुत बहुत शुक्रिया। सो सिद्दीक भाई, मैन ऑफ द मैच यहाँ से ऊपर से दिया जाएगा। Yes, is over to Harish Pandya. दोस्तों, अक्षय थेटे ये मॅन ऑफ द मॅच आहे। अक्षय थेटे, आपलाच नम्र विनंती आहे, इथे वर मुख्य मंचावर जिथे मी उभा आहे तिथे यायचं आहे। लोअर फुल टॉस उछाल दिया है। अभिनंदन रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड हार्ड लक सोना देवी टेमगढ़ टीम। जावेद रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं, तारामंडल में भेजते खिलाड़ी है, छह खिलाड़ी को ब्रेक कर। हवा में है गेंद, फील्डर डीप में मौजूद कपिल केडे, बहुत अच्छा कैच। इस बार उल्टा शॉट गैप में निकाल दिया है, क्या कुछ शॉट। 8 रन चाहिए। फुल टॉस है इस बार तारामंडल में, लेकिन मैदान के अंदर और आउट। कपिल केने कमाल कर रहे हैं। ऑन द राइज, हवा में खेल दिया है, कैच ड्रॉप। तर सुस्वागतम मित्रांनो। मॅन ऑफ द मॅच द्यायच्या अगोदर आपण एक इथे भव्य सत्कार करणार आहोत। मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये डॉक्टर दीपेश देवराज नाईक, कारिवली गावाचे सुपुत्र उपस्थित आहेत। ठाणे सिव्हिल हॉस्पिटल, डॉक्टर DY पाटील हॉस्पिटल आणि साई हॉस्पिटल पनवेल इथे ते प्रॅक्टिस करत आहेत आणि दीपेशजी यांचा आज आपण इथे भव्य सत्कार करणार आहोत। ॲडव्होकेट मयुरेश पाटील यांच्या शुभ हस्ते। डॉक्टर दीपेश नाईक, वेलकम। आपण कोरोना काळामध्ये दिलेल्या सेवेबद्दल आम्ही अंतःकरणापासून आभारी आहोत आणि तुम्हाला पुढील वाटचालीसाठी खूप खूप शुभेच्छा आहेत। मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये इंजिनियर चिरंजीवी गोकुळ नाईक उपस्थित आहेत। सिव्हिल इंजिनियर आहेत, कृष्णाई एंटरप्राइजेसचे सन्माननीय गोकुळ नाईक साहेब, जिल्हा परिषद सदस्य यांचे सुपुत्र आहेत ते, आणि चिरंजीवी गोकुळ नाईक साहेब, आपलं हार्दिक स्वागत आहे। त्या व्यतिरिक्त मित्रांनो, आज आपल्यामध्ये भरपूर ॲडव्होकेट्स आणि हे युवा ॲडव्होकेट्स आहेत। धून भंडारी, निधी पांडव, शिवानी चोनकर, अलसबा मोमीन, अंकित कडू, मंगेश चौरे, मोहित काथोड, युग मेस्त्री, महेश वडलकोंडा आणि ॲडव्होकेट झैन नदीम अन्सारी, हे सर्व युवा ॲडव्होकेट्स आहेत जे ॲडव्होकेट नारायण अय्यर साहेब यांच्या मार्गदर्शनाखाली काम करतायत, शिकतायत आणि येणाऱ्या दिवसांमध्ये तुम्हाला न्याय मिळवून देणारे हे सर्व ॲडव्होकेट्स यांचं आम्ही स्वागत करीत आहोत। आणि या सर्व ॲडव्होकेट्सच्या संयुक्तरित्या ते सामनावीरचा पारितोषिक अक्षय थेटे यांना देणार आहेत। अक्षय थेटे, जरा पुढे यायचे प्लीज। 1000 रुपयाचा चेक आणि महापौर चषकाची सामनावीरची ट्रॉफी हे अक्षय थेटे यांना बहाल करण्यात येत आहे। जबरदस्त परफॉर्मन्स अक्षय थेटे यांचं। आणि असं म्हणतात ना, हरण्याच्या भीतीपेक्षा जिंकण्याच्या उत्कंठेवर मात करणं अवघड असते। सोना देवी टेमगरचं तेच झालं। जिंकण्याच्या शक्यतेमुळे हर्षवायू झाला आणि उन्मादामध्ये